कृष्णा बच्चों, कैसे हैं आप? तो बच्चों, आज जो हमारा टॉपिक है वो है फायर एक्सटिंग्विशर. सो दिस इज आवर टॉपिक टुडे. सो बेसिकली व्हाई वी हैव चूजन दिस टॉपिक? ऑब्वियसली वन रीजन इट्स इन योर टेक्स्ट बुक. और आपको दिख रहे होंगे यहाँ 1, 2, 3, 4. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ 5. No, there are 6, 7, 8. There are other types of also fire extinguishers. The point is, why we need so many types of fire extinguishers? You may be wondering. Because there are different classes of fire. फायर के भी अलग अलग टाइप होते हैं. जैसे कुछ फायर आपके पेपर वुड से लगता है, कुछ फायर इलेक्ट्रिसिटी की वजह से लगता है, कुछ फायर पेट्रोल ऑयल की वजह से लगता है. सो डिफरेंट क्लासेस ऑफ फायर आर देयर. इसलिए उन सब के लिए देयर इज अ डिफरेंट फायर extinguisher which is designed. So जैसे उसमें से कुछ हैं, जैसे पाउडर वाला. It is used in maximum. It's used in like it is when fire is due to like shock of electric circuit. तो आप इलेक्ट्रिक सर्किट पर पानी नहीं फेंक सकते उसको बुझाने के लिए, वो तो और भयंकर हो जाएगा. द पर्सन जो जाएगा वो भी मर जाएगा. उधर हम पाउडर यूज करते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं. बेसिकली द पॉइंट इज about there are different classes of fire and there are different classes for to extinguish those fires. There is different classes of fire extinguishers. So let's have the and अभी आपने देखा होगा fire is a very dangerous thing. अभी अगर आप देखेंगे there is a fire Wednesday evening को UAE में there was a fire in UAE and it was a big fire in UAE. It was Ajman market where the fire broke. It is such a huge clouds. ऐसा लगता है कि पूरे बादल पूरे आसमान में छा गए हैं. So fire is dangerous thing. और the most important thing which आप बोलेंगे अरे सर इतना अगर फायर इतना फैलता है तो उसके लिए छोटे छोटे से ये फायर एक्सटिंग्विशर्स क्या करेंगे? इट्स नेचुरल क्वेश्चन कैन कम. ये छोटे छोटे सिलेंडर क्या करेंगे? लेकिन आप याद रखिए, कोई भी बड़ी आग शुरू कहां से होती है? It starts with the spark or small fire. This is how it starts, with spark or with small fire. ऐसा नहीं कि पहले ही सडनली बहुत बड़ा. It's not like like atom bomb was फेंक दिया था नागासाकी और हिरोशिमा पे अमेरिका ने, उधर कुछ नहीं कर सकते. That's a big, वो तो एक डिवास्ट्रेशन हो गया. But this fire which starts with a spark, जो छोटी सी फायर से शुरू होता है, and that it turns big. It turns very big. उसको फिर कंट्रोल नहीं कर सकते. एक बार वो बड़ा हो गया, then you can't control that fire. जैसे still I know many of people, आप लोगों में समझ नहीं आ रहा इतना भी क्या, छोटा सा फायर इतना बड़ा कैसे हो सकता है? Here's a video which was, this is Indian Institute of Standard and Technology Administrative, US Department in Commerce. They have made this video. In this video आप देख सकते हैं dry Scotch pine. Dry Scotch pine, it will catch fire. देखो टाइमर भी लगा हुआ है. You can see the timer is also there right on, and you can see how the fire is catching in 6 seconds. In 7 seconds में तो पूरा घर को आग लग चुकी है. The fire कहाँ spark से शुरू हुआ, and you can see within seconds the whole house is on fire now. अभी आप देखो, अभी तक couch पे पहुंच गया fire. The fire is on now couch. It's just 20 seconds. And it is catching to adjacent couch. It is catching whole house. अभी देखो Almira, in 30 seconds this fire is everywhere. Why I am showing this video? To understand the magnitude. कितना डेंजरस है. एक स्पार्क से देखो पूरा घर, मतलब 1 मिनट के अंदर पूरा खाक हो गया घर. With 45 seconds whole house is gone. You cannot see anything there now. Just 45 seconds. लेकिन वही, if you would have any of this type of extinguisher and you know how to use this extinguisher, you could have saved the whole house. और ये सिर्फ घर तक नहीं रहता है. आग फिर एक घर से दूसरा, मतलब पूरा फ्यूल ही है उसके लिए, आग के लिए. it will just go on. See, उसके लिए, because if you understand, फायर को 3 चीजें चाहिए. If you see 4 things fire needs to catch. First thing is it needs is
फ्यूल, पहला तो इसको फ्यूल चाहिए आग को लगने, दिस इज फर्स्ट थिंग विच फायर नीड्स। सेकेंड थिंग इज हीट, एंड देन द थर्ड थिंग इज ऑक्सीजन, without oxygen nothing will catch fire, and then is chain reaction। चेन रिएक्शन से यहां मेरा मतलब क्या है, जैसे आपने आपने वो वीडियो में देखा, पाइन से काउच पे चला गया, काउच से फिर टेबल पे चला गया, इट गोज ऑन। सो दीज फोर फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी फायर जो बड़ा हो सकता है। अभी जैसे अगर घर में आग लगी तो पूरा घर ही उसके लिए फ्यूल है, वुड है, कुछ भी वुड का है, पर्दा है, कपड़ा है, फुल एवरीथिंग इज फ्यूल फॉर हिम। और हीट विल कीप जनरेटिंग, इट विल मोर, और जितना ऑक्सीजन उसको मिलेगा इतना रैपिडली इट फायर विल बर्न, एंड ऑब्वियसली देन चेन रिएक्शन, एक से दूसरे को आग, दूसरे तीसरे, एंड होल बिल्डिंग कैन बी ऑन फायर। जैसे इफ यू सी दिस यूएई फायर, पूरा अजमेर अजमान मार्केट इज ऑन फायर, इवन द नियर बाय हॉस्पिटल्स को वैकेट करना पड़ा उनको, इतना इतना धुआं हो गया वहां। सो ऑल दीज फैक्टर्स इफ यू नीड टू कंट्रोल, यू शुड अंडरस्टैंड दैट हमको इन तीनों में, इन चारों में से एक को रोकना है। या तो आपको फायर को रोकना है, फायर को, फ्यूल को रोकना है, तो आग जितनी फ्यूल है उतना ही जलेगा, बाकी बच जाएगा, सेपरेट कर देना। जैसे फॉर एग्जांपल आपने वो मूवी देखी होगी, द ट्रेन, जिसमें एक ट्रेन में आग लग जाती है, एंड इट इज गोइंग टू कम टू नेक्स्ट अपार्ट, डिब्बे में आती है। व्हाट दे डू, दे सेपरेट दैट इंजन ओनली, वो इंजन को ही उसको अलग कर देते हैं, उसको ही उड़ा देते हैं, द रेस्ट एवरीथिंग इज सेव्ड। सेम थिंग ऐसा यहाँ पर, आप उस फ्यूल को हटा दो वहां से, so that it is not going to catch more fire, and then heat, और या ऑक्सीजन का सप्लाई रोक दो, नहीं तो चेन रिएक्शन। एनी वन ऑफ इन चीजों को हमको किसी तरह कंट्रोल करना है टू स्टॉप द फायर, और इन चारों चीजों को कंट्रोल करने के लिए देयर आर डिफरेंट फायर एक्सटिंग्विशर्स। तो टू अंडरस्टैंड डिफरेंट फायर एक्सटिंग्विशर, फर्स्ट आपको समझना है देयर आर डिफरेंट क्लासेस ऑफ फायर। जैसे इफ यू सी देयर इज क्लास ए, क्लास ए फायर। ये जो क्लास ए फायर, इट इज इट्स बेसिकली कंबस्टिबल सॉलिड मटेरियल्स सच एज वुड एंड पेपर। ये बेसिकली वुड एंड पेपर से जो फायर लगता है, दिस इज क्लास 1। देन देयर इज क्लास बी, then there is class B, and this class B is basically flammable liquids। Flammable liquids, and then there is class C, this is flammable gases। obviously in many things class B के अंदर ही फ्लेमेबल लिक्विड भी आता है एंड गैस भी आता है, बट वी आर सीइंग दिस इज लेटेस्ट standards which have been laid, so I am just using those only। and there is something class D। ये देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ फायर्स हैं। क्लास डी में है मेटालिक फायर, जैसे टाइटेनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, दे आर हाईली इनफ्लेमेबल। सोडियम को अगर आप पानी में भी डालेंगे तो आग लग जाती है। सोडियम, पोटेशियम, ये आप लोगों ने पढ़ा भी है स्टैंडर्ड में, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन विद वाटर, दे कैन इमीडिएटली कैच फायर। एंड देन देयर इज क्लास ई आल्सो, क्लास के, एंड दिस क्लास के इज बेसिकली कुकिंग फायर। कुकिंग फायर्स होता है ना, एनिमल एंड वेजिटेबल ऑयल्स, ऑयल की बेसिक, ऑयल एंड फैट्स, ऑयल एंड फैट्स की वजह से जो आग लगती है। एंड देन देयर इज दिस सिंबल जो आप देखेंगे ऑन फायर एक्सटिंग्विशर्स, दिस इज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फायर, इलेक्ट्रिकल फायर। This is electrical fire, and if electrical source is removed, then it is no longer electrical fire. Then it will either come in flammable liquid, gas, or it may come in anything classes.
बट इफ इलेक्ट्रिसिटी की वजह से कंटिन्यूसली आग लग रही है, इट कम्स इन इलेक्ट्रिकल फायर. दिस इज द सिंबल फॉर दैट. You will see this symbol in on these cylinders. So these are different classes of fire. अभी जब आपको पता लग गया हाँ क्लास ए फायर लगा है, तो उसके लिए there is a different fire extinguishers. So for that purpose there are total, hope this is clear. There are 4 factors for fuel. Just you can see there are 4 factors जो हमने पढ़े अभी फ्यूल के, फ्यूल, हीट, आग लगने के, एंड ऑक्सीजन. देन देयर आर डिफरेंट क्लासेस. हमने देखा क्लास ए इज अबाउट वुड एंड पेपर, देन क्लास बी इज अबाउट फ्लेमेबल लिक्विड्स, क्लास सी डी metallic fire, class E is oil and fats, and then this is the symbol for this is the symbol for that one more type of fire, it's for electrical fire. So अभी अगर आप देखेंगे ना बेटा, अगर जो क्लास ए फायर लगा है उसके लिए आपको अलग फायर एक्सटिंग्विशर चाहिए. अभी वुड, अगर आपको इलेक्ट्रिकल फायर, अभी ऑयल और फैट फायर लगा, समझ लो घर में आप कुकिंग कर रहे हैं, मदर ने ऑयल लगाया, मदर ने कढ़ाई लगाई हुई है और उसके ऊपर ऑयल रखा है, एंड शी जस्ट फॉरगेट्स एंड कंटिन्यूअसली फायर इज देयर. कुछ समय के बाद ऑयल का जब हीटिंग पॉइंट आता है उसमें आग लग जाती है, इट कैचेस फायर. अभी आप उधर हैं, आपको लगता है आग है तो मैं पानी डालता हूं, पानी से आग बुझ जाएगी. दिस विल बी द बिगेस्ट डिजास्टर जो आप करेंगे. जैसे ही आप उसमें पानी डालेंगे ना ऑयल में, आग और बढ़ जाएगी, इट विल स्प्रेड, होल हाउस विल बर्न. सो याद रखो, जब भी कुछ ऑयल और फैट से फायर, घर पे आग लगते ऑयल से कहीं कुकिंग एरिया में, नेवर यूज वाटर. सो दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड. इट्स अ वेरी सीरियस टॉपिक व्हिच वी आर डिस्कसिंग. मतलब आग, और यू शुड नो हाउ टू यूज even these all fire extinguishers. You should know how to use them. अगर आपको नहीं मालूम है, then still you should know कि मुझे फ्यूल को सेपरेट करना है, मुझे हीट को रोकना है, मुझे ऑक्सीजन सप्लाई रोकना है. लाइक अगर आपके घर में ऐसे कुकिंग एरिया में आग लग गई तो आपको पानी नहीं डालना है, आप कुछ उसके ऊपर डालिए ताकि उसको ऑक्सीजन सप्लाई रोक दीजिए उसका. कोई गोनी डालिए, बहुत सारा कुछ कपड़ा डाल दीजिए उसके ऊपर, ताकि उसका क्या हो जाए, इट हैज टू बी लार्ज अमाउंट. थोड़ा सा डालेंगे तो वो कपड़ा उसको और फ्यूल बनेगा उसका. उतना ज्यादा होना चाहिए वो उसका कि ब्लैंकेट, जैसे कढ़ाई में लगी तो एक ब्लैंकेट ही डाल दो उसके ऊपर, ताकि उसको ऑक्सीजन सप्लाई रुक जाए, ताकि उसको फिर वो फायर ही नहीं बढ़ेगी. सो दीज थिंग्स इफ यू नो इवन द बेसिक, यू कैन बिगेस्ट डिजास्टर्स यू कैन सेव. और इंडिया में तो ऐसे ही पैनिक हो जाते हैं हम लोग. Because why I am telling you this fire, this had happened one time, because one time we are kitchen cooking in our ISKCON temple in Bombay. So उधर एक कढ़ाई में किसी ने कुछ तो लगा था frying, तो suddenly the fire started, and there was one employee, he took bucket in his hand and he was about to put that in that big, and the pan was huge. अभी kitchen में मतलब it was cooking for thousands of people and there was a lot of oil there, and अगर उसने वो उधर डाल दिया होता उसमें, and by chance I was just standing there, I immediately kicked that bucket, and that obviously bucket spit बहुत दूर गिर गया. That fellow also fell down. I told you are mad, हम सबको तूने जला देना था. You can't put water. Fire is there. It's not that, it's a oil and fat fire. And then obviously I immediately switch off the flame down. क्यों? मैंने heat को रोक दिया. What I did, मैंने उसको heat को रोक दिया उधर, और हीट धीरे धीरे वो टेम्परेचर डाउन, और जितना भी उसमें ऑयल और सब जल गया. ऑब्वियसली हमारा सीलिंग्स बहुत हाई था टेम्पल का, तो इसलिए कहीं और आग लगी नहीं. वी अलाउड दैट फायर टू गो ऑन, लेकिन मैंने उसका हीट रोक दिया था. और फ्यूल ऑब्वियसली जो उसके अंदर था, दैट वाज द होल फ्यूल, इट वाज देयर. सो ऑब्वियसली वी ऑल वर सेव्ड. अगर वहां पे उस आदमी ने, जो वहां पे जो वर्कर था, उसने वो पानी उधर डाल दिया होता ना, जितने भी लोग हम लोग थे, हम तो जलने ही थे और ये आग और बढ़ जाती. सो दैट दिस इज द रीजन यू शुड नो ऑल दीज थिंग्स. सो पढ़ना हमको सिर्फ ऐसा नहीं, आपको सिर्फ मार्क्स लेके आने के पढ़ने हैं, ये लाइफ सेविंग स्किल्स हैं कुछ. सो इसलिए प्लीज टेक दिस थिंग्स सीरियसली एंड अंडरस्टैंड दैम. और ऑब्वियसली आई वुड लाइक टू नो इफ यू शुड नो हाउ टू यूज ऑल फायर एक्सटिंग्विशर, दैट इज बेटर. फायर ड्रिल्स होता है, ऑब्वियसली अभी नो कोरोना की वजह से our schools are not open only, otherwise I would have definitely done fire drills with you, how you can actually use fire extinguishers. So let's understand, to understand there are different classes of fire. Then there are different, for those there are different extinguishers. So there are total, we'll discuss total 6 fire extinguishers. In that, first which we will
try to understand is A, B, C. Power. It is a powder fire extinguisher. Sorry for my bad writing. It's first time I'm using this tab, so it will take time to get used to it. Hope you are understanding. If you are understanding, you can get back. And then second is carbon dioxide. Carbon dioxide. Fe is fire extinguisher. And then third is wet chemical. Wet chemical fire extinguisher. Then fourth is water mist. Fire extinguisher. And then fifth is foam. Foam fire extinguisher. And then the sixth is clean agent fire extinguisher. So these are different fire extinguisher. Now we will try to understand the various types of these and why these extinguishers are necessary, and we will see how they are used. Now if you see this one, ABC powder extinguisher has numerous advantages, as it is a multi-purpose extinguisher and it is therefore one of the most common extinguishers we have on hand. We will see where all you can use. This power extinguisher is effective in class A, class B, C, and this symbol also you should remember for electrical fire, because it effectively breaks the chain reaction in liquid and gas fire, something that water extinguisher won't be able to do, because we can't use, when electricity fire is there, you can't use water. So this is how this fire extinguisher is used. Then there is carbon dioxide extinguisher. Carbon dioxide CO2 is one of the cleanest type of extinguisher to use, and it leaves no residue. ये कोई भी residue नहीं रखता है. No residue is left and requires no cleanup. Powder डालेंगे तो you have to clean powder, but यहाँ पे there is no residue only left, so there is no need. Then comes wet fire extinguisher. Is a specialized type of primarily focus on class E fire. Class E fire आपने देखा होगा किचन में लग सकता है. Involving cooking media such as animal and vegetable fats or oil, वहाँ पे K type use होता है. This is for K file, wet chemical extinguisher. इसमें क्या होता है? First the liquid mist is sprayed acts to cool the fire. एक liquid mist आता है chemical, वो fire को ठंडा करता है. Second, due to the chemical reaction of solution with the cooking medium, a thick soap-like substance बन जाता है, sealing the surface of the liquid to prevent reignition. मतलब उसको और फ्यूल को आग नहीं लगती है. So this is wet chemical. पहले क्या करता है? वो cool करता है, फिर foam create करता है, and it just stops reigniting of the fuel. Then is water mist. This is very simple, water mist, and obviously one thing you should understand: this wet chemical is ideal for kitchen. ये kitchen में रहना ही चाहिए. And then water mist, the most versatile to set water mist using newly technology that works across the classes of fire. So this type of extinguisher releases microscopic water molecules that fight the fire on various variety of levels. क्यों कैसे? Because so much water is dispersed in such microscopic fog-like form, the level of oxygen in air is decreased. तो ये क्या होता है? छोटा छोटा पार्टिकल्स ऑफ वाटर एक फॉग ही क्रिएट हो जाता है. उसकी वजह से क्या होता है? ऑक्सीजन डिक्रीज हो जाता है एयर में, विच हेल्प्स टू सफोकेट द फायर, और फायर बुझ जाती है. एंड दूसरा है आपका हमारा जो है वो है फोम टाइप एक्सटिंग्विशर. फोम फायर एक्सटिंग्विशर सुटेबल फॉर क्लास ए फायर. विल अगेन सी द टेबल इन विच ये सब क्लियर हो जाएगा. एंड फ्लेमेबल लिक्विड्स लाइक बी के लिए भी है, क्लास बी के लिए भी, लेकिन जो गैसियस से फायर लगता है उधर फोम काम नहीं आता. दे उसमें क्या होता है? दे स्प्रे ए टाइप ऑफ फोम दैट एक्सपैंड्स, expands when it hits the air and blankets the fire.
This blankets prevents the vapors from rising off the level of feed the fire. तो वेपर्स जो बन रहे हैं वो रुक जाते हैं, इट जस्ट फ्रीजेस देम, और फ्यूल क्या हो जाता है, फ्यूल मिलता नहीं है फायर को, एंड इसकी वजह से, और फोम क्या होता है, मिक्स हो जाता है वाटर के साथ, इट हैज ए कूलिंग इफेक्ट एज वेल, तो इसलिए फोम बुझा देता है फायर को. बट दिस इज ओनली फॉर क्लास ए एंड बी, नॉट फॉर सी. Then is clean agent fire extinguisher. A clean agent fire extinguisher is a type of gaseous fire suspension stored in its liquid form. When it is sprayed and it hits the air, it converts it to its gaseous form, which is non-conductive, safe for use while humans are prevent, leaves no residue, and has a very short atmospheric lifespan, making it eco-friendly also. And this is most commonly used in class B liquid and gaseous inflammable substances. So these are different 6 types of we discussed. ABC powder type fire extinguisher, carbon extinguisher and where it is used, wet, water mist, how it works, foam, and clean agent. I will send you detailed notes also, you can read them out whatever I have spoken right now, so that you have much clarity. So right now just understand there are these 6 types, and let's now understand this is what I was mentioning you. There is a specific symbol, जहां पे ड्राई पाउडर यूज हुआ होगा ना बेटा, वहां पर ऐसा ब्लू सिंबल रहेगा, ब्लू कलर का. जहां पे फोम टाइप रहेगा वहां पे ऐसा सिंबल कलर रहेगा. जहां CO2 रहेगा वो देखो ब्लैक कलर रहेगा. या वेट रहेगा वहां पे येलो सिंबल रहेगा. वेट केमिकल है इसके अंदर, और ये किस क्लास के लिए यूज होता है ना, दैट इज ऑल्सो, इफ यू सी, दैट इज ऑल्सो गिवन हियर. लेट्स एक्सपैंड इट सो दैट यू कैन सी इट क्लियरली. So I hope it's clear now. So here it is. So first water कहां होता है, क्लास ए, ये देखो here is written क्लास ए के लिए यूज होता है. और कहां इसको यूज नहीं करना चाहिए, इसको बी में यूज नहीं करना चाहिए, फ्लेमेबल लिक्विड्स के लिए, और लाइव इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट इसको यूज नहीं करना चाहिए, डू नॉट यूज. और अगर आप देखेंगे ड्राई पावर, इसको ऑलमोस्ट हर जगह यूज कर रहे हैं सिवाय किचन के. इसको वुड में यूज कर सकते हैं, फ्लेमेबल लिक्विड्स के लिए यूज कर सकते हैं, गैसियस फायर के लिए, लाइव इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स के लिए यूज कर सकते हैं. फिर फोम आप ए में भी यूज कर सकते हैं, बी में भी यूज कर सकते हैं. सी कहां यूज नहीं कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज नहीं कर सकते. क्यों, इसमें वाटर है, इट्स ए लिक्विड, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को पास करेगा, कंडक्ट, सो इट्स ए डेंजरस. देन CO2 कहां यूज होता है बेटा, बी में, जहां इनफ्लेमेबल लिक्विड्स और इलेक्ट्रिसिटी में. कहां यूज नहीं करना, डू नॉट यूज इन ए कन्फाइंड स्पेस. क्यों, क्योंकि अगर छोटी सी जगह पर आपने कार्बन डाइऑक्साइड डाला तो आप क्या लेंगे, हमको तो ऑक्सीजन चाहिए ना, इट कैन इफेक्ट यू, पर्सन हु इज यूजिंग इट. सो ऑब्वियसली देयर हैज टू बी स्पेस फॉर दैट. और वेट केमिकल आप ए में यूज कर सकते हैं एंड एफ में. कुकिंग ऑयल, बेसिकली किचन के लिए ये आइडियल है. वेट केमिकल सिलेंडर हैज टू बी इन द किचन. So these are different types of kind of fire extinguishers which are there in the market, and these are different symbols which has been there. Now आपकी जो टेक्स्ट बुक में बेटा लिखा है ना, ये आपको दिया हुआ है, आपको वर्किंग आपको दिया गया है इसका, और ऑब्वियसली ये एग्जाम में आता है. ऑब्वियसली आपको तो मालूम है हमारा टेक्स्ट बुक में जो लिखा होता है वो करंट हमारे जो एक्चुअल यूज में बहुत ही डिफरेंस रहता है. इसलिए मैंने आपको पूरा सब हिस्ट्री बता दिया फायर एक्सटिंग्विशर का. ये आपके बुक में नहीं लिखा है कहीं पे भी, बट बिकॉज हमारा एजुकेशन ऐसा होना चाहिए जो हमको हेल्प करे, डे टू डे. ऐसा नहीं कि हमने बस रट्टा मारा, ये डायग्राम जो आपको सामने भी दिख रहा है स्क्रीन के, तो हो गया, पास हो गए, नहीं. ये आपके बुक में दिया हुआ है ये पूरा मैकेनिज्म, लेकिन ये कहीं अभी हार्डली यूज होता है. बट स्टिल यू हैव टू रिमेंबर, यू मे हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम आल्सो टू गेट द मार्क्स. सो इसलिए इसको समझ लो. बेसिकली ये नॉब है इसका, दिस इज नॉब. और जब आप इस नॉब को प्रेस करते हैं, व्हेन यू प्रेस इट, ये जो कैप्सूल है ये ब्रेक हो जाता है. और ये जो कैप्सूल में क्या होता है, एक्चुअली सल्फ्यूरिक एसिड होता है, दैट यू शुड अंडरस्टैंड. इसमें सल्फ्यूरिक एसिड रहता है, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड रहता है, और वो मिक्स होता है किसके साथ, पाउडर सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ. व्हेन दिस मिक्स, देयर इज अ रिएक्शन व्हिच टेक्स प्लेस.
we'll see that reaction. This is basically, I will just hope this diagram is clear to you. Now I will take it to the side so that we can write the reaction properly. Oh, sorry. So this is how it is there, and the reaction for this is NaHCO3 plus, this is powder sodium bicarbonate. It mixes with what? Sulfuric acid, H2SO4. When it mixes, कैसे मिक्स हो रहा है बेटा? यू नो, जब आपने इसको प्रेस किया ये टूट जाता है, दिस ब्रेक्स, दिस कैप्सूल ब्रेक्स, जिसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड है, एंड दिस सल्फ्यूरिक एसिड मिक्सेस विद पाउडर फॉर्म ऑफ सोडियम bicarbonate, and this is sodium bicarbonate, this is sodium bicarbonate, and this is sulfuric acid. ये जो मिक्स होता है, then what you get Na2SO4 plus water is released, plus this is what we need, CO2 gas, to balance it twice, and this is twice. So this is what we wanted, जो हमको मिलता है, CO2, जिससे हम फायर एक्सटिंग्विश करते हैं. So this is important reaction. You must know it, and you have to draw it when it comes in exam. And this is the diagram which you should know. Now the thing is that, most important, like as I already we saw in previous page, like where we should use water type, where we should use dry powder type, foam type, and wet chemical type. This is very important. And then we saw the reaction, and we saw the working, how this knob is pressed and this capsule breaks, and then how sulfuric acid mixed with the powder, and then how this reaction takes place. So this is all about your basically your fire extinguishers. So thank you very much. So we'll now take next topic, which is about methane gas, and also we'll study biogas.